برائے مہربانی میرے تینوں چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک مائی دیز امپورٹنٹ 3 چینلز۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے۔ چھوٹی سی بات ہو نہیں ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ کسی سے کچھ پیسے ہم نے لینے ہوں اس کی اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ پہلے عمل کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں۔ ہمارے اندر قوت برداشت اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو لمحہ بھر کے لیے اس کی کریٹیسزم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی نے طنز کیا، فکرہ کسا، تھوڑی سی اس سے غلطی ہو گئی، ایک تماچا اس کے منہ پر مارا، 10 تماچے خود کھا لی، تھپڑوں کا تبادلہ ہوا، ٹانگیں چلی، اور جو ارد گرد میں جو ہتھیار تھے، اینٹ تھی، پتھر تھا، جو راہ کے مسافر راستے میں پڑے تھے، اٹھایا اور ایک دوسرے کو بغیر دیکھے مار دیا۔ رزلٹ موت، قتل کی شکل۔ قوت برداشت ہی نہیں، ڈپریشن کے بھی شکار ہیں، انگزائٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فکرات دنیا نے، فکرات معاش نے، دنیا ہائے دنیا، بس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اللہ کے بارے میں سوچا ہے، نہ دین کے بارے میں کچھ علم ہے۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنا نہیں ہے، نام کے مسلمان۔ لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، ایک دوسرے کو گالی دینی ہے، ایک دوسرے کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، لاتوں گھوسوں مکوں کا استعمال کرنا ہے۔ مسکراہٹ چہرے سے چلی گئی اور اس کی جگہ پر آ گئی پریشانی۔ چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے ہیں، سر کے بال سارے سفید ہیں، سوچ کے پریشان رہ کے وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ موبائلوں میں مست ہو کر فحاشی، بدماشی اور طرح کے ویڈیوز دیکھ کر اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چلا۔ چھوٹی راہ چلتی بچی کو ریپ کیا، مرڈر کیا، اور پھر پچھتاوے کیا ہاتھ آوے۔ نہ ہم نے اسلام کو سمجھا، نہ ہمارے بڑوں نے اسلام کو سمجھا، نہ ہم نے کبھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر ہم اسلام پر چلتے، اسلام کو سمجھتے، اس کے رولز کو فالو کرتے، نہ ٹینشن ہوتی، نہ ڈپریشن میں ہوتے، نہ پریشان ہوتے، نہ ہوس دنیا ہوتی، اور نہ کسی دوسرے قسم کی پریشانی آ گھرتی۔ رزلٹ نکلتا ہے جی قتل قتل قتل۔ 10 روپے کے پیچھے میری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ مرڈر ہو گیا جی۔ 10 روپے کی قدر نہیں رہ گئی انسان کی۔ ٹارگٹنگ، کلنگ کی جاتی، فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا۔ نصیحتیں جتنی کر لیں، جتنے بڑے بڑے لیکچر کے انبار لگا لیں، نہ ہم نے سدھرنا ہے، نہ ہم سدھریں گے۔ قانون کی نظر میں قتل 4 اقسام پر مشتمل ہے: ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر، قتل خطا، قتل بالسبب۔ ایک شخص ہے ہی ٹارگٹ کلر، اس نے تو قتل کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو چھوڑے۔ کل رات میں اس کے پاس گیا، میرے پیسے اس نے دینے تھے، نواب زادہ اندر گھر بیٹھ کے چھپ گیا اور باہر نکلنا نہیں۔ اب اگر اس نے مجھے آج پیسے نہ دیے تو میں اسے مار آؤں گا۔ رات ہوئی، گن جیب میں رکھی، لوڈڈ گن جیب میں رکھی اور پہنچ کے اس کے دروازے کے اوپر قتل کی نیت سے
वो बाहर बेचारा निकला, अभी वो अपने बारे में अपने मजबूरियां जाहिर करने ही वाला था, सीधा फायर उसके माथे में मारा और मार दिया। दफा 302 लग जाएगी। बंदा मर गया, दफा 302 लग गई। इरादी कत्ल था, इरादे के साथ कत्ल करने आए थे, दफा 302 लगेगी। या तो सजाए मौत है और या उम्र कैद। इस्लामी और शरीयत के मुताबिक हम देखें तो कसास है, कत्ल का बदला कत्ल। यहां एक वजाहत करना जरूरी है कि जहां तक कत्ल की सजाओं का ताल्लुक है तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 299 से लेकर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 323 तक ये अहाता कर देते हैं सजाओं से रिलेटेड। जितने सजाएं हैं इन्हीं दफात के थ्रू इन कातलीन पर लागू होंगी। अब गैर इरादी तौर पर कत्ल की दूसरी किस्म, इरादा नहीं था कत्ल करने का लेकिन कत्ल हो गया। एक बंदा सामने से आ रहा है, दूसरा सामने से जा रहा है, आपस में टकराव हो गया, लान तान चली, गाली गलोच चला, मुक्का चला, साथ ही पड़ा था एक डंडा, दे मार उसके सर पर। इरादा नहीं था मारने का लेकिन डंडा इस ऐसी नाजुक जगह पर लगा कि बंदा फड़क के मर गया। तो ये कत्ल, ये गैर इरादी कत्ल कहलाता है। अब इसकी सज़ा अगर हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25 साल कैद है जी, और अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दियत इसमें आएगी, रकम इसे देनी पड़ेगी और इस पर दफ़ा 315 लागू होती है। अब कत्ल खता कार एक्सीडेंट जैसे हो जाता है, कोई वहम गुमान भी नहीं है, किसी को जानते तक नहीं है, किसी को पहचानते तक नहीं है, मदहोश होकर ख्वाबो ख्यालों में मोबाइल हाथ में लिए हेलो 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 करते हुए बेगम से गुफ्तगू, गर्लफ्रेंड से गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं, आगे से बेचारा बूढ़ा बच्चा नौजवान आ रहा है, दिमाग किधर था, दे मारा उसे, जैसे उसे मारा वो बेचारा वहीं मर गया। अब दफ़ा इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 318 इस पर लगेगी और ये कत्ल ख़ता में आएगा क्योंकि इरादा नहीं था लेकिन कत्ल हो गया। तो शरीयत के रोज़ से दियत है, इसमें पैसों का इसमें इन्वॉल्व होगा। और दूसरा है जी 5 साल कैद, बाजू का जुर्माना और 5 साल कैद भी इकट्ठे हो सकते हैं। चौथी और आखिरी जो है वो है कत्ल बिद सबब। एक लड़का जा रहा है जी, रास्ते में गटर का ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, बच्चा जाते हुए वहां गिर जाता है। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, मोटरसाइकिल टकरा खुले हुए होल में जाकर गिर जाता है और मर जाता है। ये कत्ल बिद सबब है। और ये जो मुतलका कॉरपोरेशन और जितने मुतलका महकमे हैं ये कत्ल बिद सबब के पर इन पर जो है मुकदमा चलेगा। और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 इस पर लागू होगी, भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पुरसकून ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, सुबह उठें, अल्लाह को याद करें, नमाज फजर अदा करें, बाजमात नमाज फजर अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, वॉक पर निकल जाएं, वॉक करें, खूब एक्सरसाइज करें, अपने आप को मोटिवेट रखें, चुस्त रखें और अपनी डायरेक्शन, अपना अकीदा अल्लाह की तरफ रखें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, आपस में इत्तफाकी पैदा करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के दोस्त बन करें, दुश्मनियां ना पालें, नफरतें ना पालें, प्यार से मोहब्बत से मामलात को डील करें, खुश रहें, खुशी दें, खुशी लें, गमों का तबादला न करें, गमों के मुफ्त के ढेर न लगाएं। ये इंटरनेट की जो इजादात हैं इनमें दिन रात मस्त न रहें, बच्चों को टाइम दें, वालिदैन को टाइम दें, सबको टाइम दें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशी प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ी खुशी आपको पता है, पहले तो ये है कि इस चैनल को प्रमोट करें। जितना आप चैनल प्रमोट करेंगे और हमारे गैदरिंग में
और गेट टू गैदरिंग में और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी ये दोस्ती और परवान चढ़ेगी, हम बेहतर दोस्त बनकर और आगे निखर कर आएंगे और आगे बढ़ेंगे, हम अल्लाह के कामों में लग जाएंगे। जो अल्लाह के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है। आप नेकी में पेश रहें, अपने तौर भी आप नेकियां करते रहें और मेरे साथ में मिलें। कुछ मेरी ड्यूटीज़ हैं, मैं इंशाल्लाह पूरे कर रहा हूँ, कुछ आप मुझे ड्यूटीज़ देंगे, हम नेकी के काम करेंगे, किसी कैदी को छुड़ाएंगे, किसी स्टूडेंट की फीस हम दे देंगे, किसी बेघर को कुछ थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर देंगे, किसी को चंदा, किसी को खैरात के ज़रिए छुप के हम उसकी मदद कर देंगे। अल्लाह खुश हो जाएगा। जब अल्लाह खुश होगा इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलेगा। 10 देंगे, अल्लाह 100 करके वापस करेगा। हाथ तो बढ़ाएं ना, आगे तो बढ़े ना, हिम्मत तो करें। खाली बातों से तो कुछ नहीं होता। तकरीरें करते रहें और आप तकरीरें सुनते रहें, इनसे तो मामला हल नहीं होते ना। अमल करें, अमल करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अमल करें। तक अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा परेशान रहने लग गए, अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक काम है, आपका काम है पैगाम को पहुंचाना। अब वो अगर अमल करें ना करें ये आपकी ड्यूटी नहीं है। मैंने उनके दिलों में हिदायत अगर डालनी हुई मैं डाल दूंगा। अगर वो हिदायत याफ्ता बन गए तो कामयाब होंगे, और अगर उनके दिल अंदर से स्याह हो चुके होंगे, जितनी भी उनको तबलीग करें उन्होंने ना कुछ समझना, बोलना, सुनना, तमाम की तमाम ताकतें मैंने उनकी सल्ब कर रखी, उन पर कोई असर नहीं हो। तो मेरा काम है सिर्फ मैसेज पहुंचाना, आपको कन्वे करना, आप तक मैसेज पहुंचाना। अगर आप मैसेज नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं ठीक है इसकी तकरीर सुन ली है, असर कुछ नहीं करना, तो अल्लाह आपकी खैर करे। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और मुझे इस पर फख्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितना डोनेट हो सके करें, करेंगे बेहतरी है, नहीं करेंगे आप जाने और आपका। आखिर में गुजारिश है कि कुछ हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई पिछले कई सालों से जेलों में कैद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास वकील हायर करने की रकम नहीं है, जमानत के लिए रुपए नहीं है, यानी सिर्फ चंद हजार रुपयों की वजह से हमारे ये बेबस बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई जेलों में कैद हैं। आप सबसे दिली गुजारिश है, खुदा के लिए इन बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाइयों पर रहम कीजिए और नेकी के इस काम में हमारा साथ दीजिए। हमें दिल खोलकर अतियात दीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम एक एक जेल में जाकर इनकी ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि इनकी रिहाई भी अल्लाह के करम से अमल में लाई जाएगी। आपके सदकात के लिए ये बेगुनाह कैदी पाकिस्तानी बहन भाई आपकी राह देख रहे हैं, आपके मुंतजर हैं। अपने एहतियात इस अकाउंट नंबर पर आप बिला खौफ व खतर मुकम्मल एतमाद के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नेकी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियोस को शेयर